Ladies and gentlemen, welcome to our podcast. Today we have a very special guest joining us from the heart of India, Mr. Devender Sharma, a multi-talented individual with a passion for organic farming, meditation, and handcrafting delicious fruit preserves and condiments. With over a decade of experience in organic farming, Devender has developed a deep understanding of sustainable agriculture and the importance of supporting local food systems. The founder of Parvatiya Preserves, a family owned green business headquartered in Uttarakhand, India, that has been revolutionizing the modern diet with premium functional foods that increase energy and promote health, while going back to the beginning of time when food was wholesome, therapeutic, natural, and nutritious. The mission of Parvatiya Preserves is to provide pure and naturally cultivated superfoods from around the world, capturing the singular flavors of exceptional fruits in every jar and deliver them straight to people's homes through their farm to home service. Parvatiya Preserves was founded in 2012 to reintroduce highly nutritious and energizing foods that were available in ancient times and handcrafts fruit preserves and condiments in small batches, capturing the essences of the fruit. Their preserves are made from time honored traditional Indian recipes and feature only the finest quality fruit and 100% all natural ingredients. Produced in India, Parvatiya preserves are all natural with no artificial coloring or preservatives added. Everything in their products could easily be found in our grandmother's kitchen cabinet. But that's not all. Devender is not just an entrepreneur but also an expert in meditation techniques. He has been practicing meditation for the last 9 years and has been conducting various training programs for teens and adults on meditative soul and beyond in the lap of nature for the last 3 years now. His passion for connecting with nature and exploring the potential of the human mind is truly inspiring. Devender, with such a diverse range of skills and interests, is truly a master of his trade and is always looking for new and exciting ways to share his passion with others. Join us as we delve into the story of Parvatiya Preserves, the challenges they faced, and the journey that led them to where they are today. We will also explore the connection between food, nature, and meditation and learn how they are all interlinked in creating a healthy and harmonious lifestyle. I welcome you, Devender ji. I welcome you. नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी So, धन्यवाद। Devender ji, we will start from your organic farming. What inspired you to start your organic farming venture? आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी वैसे तो मेरा फैमिली प्रोफेशन अगर कहेंगे पुराना हाँ जी. इतिहास से मेरे फोर फादर्स जो है वो रॉयल शेफ हुआ करते थे राजस्थान में, Okay. राजा मान सिंह के पास। तो वहाँ पे एक बार उनका राजा मान सिंह का बहादुर शाह जफर के साथ मिलना हुआ। वहाँ उन्होंने वेजिटेरियन खाना खाया। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को राजा मान सिंह ने बहादुर शाह जफर को गिफ्ट कर दिया। तो हम लोग डैडी Okay. एज अ वेजिटेरियन शेफ इन लाल किला। Wow. तो ऐसे हमारा इतिहास तो मतलब मेरे ग्रैंडफादर और फादर इस ट्रेड में नहीं रहे थे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और उनसे पीछे की 10 पीढ़ियां पहले सिर्फ खाना बनाने वाले ट्रेड में ही रही हैं। और उसके बाद मेरे फादर अपने बिजनेस में रहे और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से अपने ग्रैंडफादर के साथ इस ट्रेड को शुरू किया। Very good, very well. So, जी
देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी फ्रेशनेस और क्वालिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप कैसे इंश्योर करते जी हैं क्वालिटी एंड फ्रेशनेस फॉर द ऑर्गेनिक प्रोड्यूस? जी, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आजकल ना ऑर्गेनिक को लेके बहुत सारी मिथ है हमारे समाज में। हाँ जी। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, जो अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो हाँ जी। किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए वो लैंड सर्टिफाइड होती है कि जिस जमीन में वो प्रोडक्ट उगाया जा रहा है वो जमीन ऑर्गेनिक है। राइट। और आजकल बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे लोग इस तरह से काम करते हैं कि हमने ऑर्गेनिक एप्पल खरीदे और उसके साथ फॉर एग्जांपल एप्पल जैम बनाया और उस जैम में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी डाले, बहुत सारे कलर भी डाले, फ्लेवर्स भी डाले, पर क्योंकि हमने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एप्पल्स खरीदे थे तो वो ऑर्गेनिक जैम। राइट। पर ये बात मुझे भी नहीं पता थी पहले, पर जब हमने एक्सपोर्ट शुरू करा आई थिंक 2014 में, तब मुझे पहली बार हमारा पहला बैच सिंगापुर गया तो वहां पे हमने अपने प्रोडक्ट के लेबल पे लिख दिया था 100% नेचुरल। ऑर्गेनिक तो लिखा ही था, साइमल्टेनियसली हमने उस पे लिख दिया 100% नेचुरल। ओके। तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई आपके नेचुरल के सर्टिफिकेट्स दीजिए आप हमें कि ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। तब हमें पता चला कि नेचुरल और ऑर्गेनिक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिस जमीन पे किसी भी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर, कोई भी रासायनिक तत्व या केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस जमीन पे उगाया गया प्रोड्यूस जो है वो ऑर्गेनिक है। ओके ओके। पर साइमल्टेनियसली अगर हम उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके केमिकल के साथ कुछ बना रहे हैं तो वो फिर नेचुरल नहीं रहेगा। ओके। मैं कहूंगा आज के दिन 90% क्या 95% से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं कि वो प्रोड्यूस तो हमने ऑर्गेनिक लिया है, पर उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उस ज्यादा समय तक चलाने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव भी डाल रहे हैं और केमिकल्स भी डाल रहे हैं और वो फिर ऑर्गेनिक हो गया। तो हमें इस बात को, ये सिर्फ बात में इसलिए हो सकता है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगे थोड़ा सा, पर मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझे कि हमें ऑर्गेनिक तो चाहिए ही, पर साथ में वो चीजें नेचुरल भी हैं, ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि लेबल के पीछे जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होती हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। हर चीज के बारे में उस पर लिखा होता है और ऐसा नहीं है कि सब कुछ झूठ बोल के बिक रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर प्रोडक्ट पे सारी चीजें, आज एफएसएसआई के जो रेगुलेशंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको सब कुछ लिखना ही पड़ता है, हर बैच की टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स होने ही चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते कि भाई ये तो बड़ा ब्रांड है, इसमें तो ये ऑर्गेनिक लिखा ही है, या किसी ब्रांड का नाम ही ऑर्गेनिक है, तो फिर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। पर बस थोड़ा सा हमें उसको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी चीज को लेके हमने, क्योंकि मेरे 99% कंज्यूमर्स जो है वो 15 साल के कम की उम्र के बच्चे। ओके। तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए हमने हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरह से, इसलिए हम जैम्स नहीं बनाते हैं, फ्रूट चटनीज बनाते हैं। ओके। उसके नेचुरल रख सकें, उसमें हमें कोई आर्टिफिशियल कलर ना डालना पड़े, कोई फ्लेवर ना डालना पड़े, कोई प्रिजर्वेटिव ना डालना पड़े। तो उसके पीछे हमारा कारण यही है और इसी वजह से हमने ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे और ऑर्गेनिक चीजों को यूज करना शुरू करा, उसके पीछे का रीजन यही है। अब जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, जैसे हम वेजिटेबल बिजनेस में भी हैं, तो वो चीजें हमने शुरू किया है बस अभी लॉकडाउन के दौरान। हमारी फैक्ट्री जो है वो मुक्तेश्वर, उत्तराखंड में एक जगह है मुक्तेश्वर, नैनीताल से और थोड़ा आगे, तो वहां पे है। तो वहां पे बहुत सारे वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो जब कोरोना आया तो एक समय ऐसा आ गया कि हमारे यहाँ के जो पशु है, जानवर है, गाय भी ब्रोकली खा रही है क्योंकि प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। हाँ जी। और वो मटेरियल एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। तो उस दौरान हमने फिर हमारे सारे फार्मर्स के साथ जुड़ के ये फार्म टू होम वाला वेंचर शुरू किया और फिर हम
ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को उत्तराखंड से दिल्ली लाके हमने उसको डायरेक्ट घर में सप्लाई करना शुरू करा, क्योंकि हमारा एक पुराना वेंचर था, हमारे साथ हमारी एक शॉप हुआ करती थी दिल्ली में, तो हम बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड थे पहले से, तो और बाय गॉड ग्रेस फिर वो बहुत अच्छा जा रहा। वेरी वेल, वेरी वेल। बट देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मौसम का बहुत प्रभाव होता है फसल पर, तो उन चीजों को, उन चैलेंजेस को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले तो किसी लैंड को ऑर्गेनिक बनाने के लिए आज के टाइम में हमें कम से कम पहले 7 साल के लिए उसे खाली छोड़ना। ओके। और सबसे बड़ा टफ पार्ट है कि ऐसा नहीं है कि आपने 7 साल अपनी लैंड पे कुछ नहीं उगाया तो वो ऑर्गेनिक हो, क्योंकि अगर आपके बगल वाले फार्म पे कोई पेस्टिसाइड यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल, और वो बारिश होगी तो वो पानी बह के आपके खेत में भी आएगा, और वो फर्टिलाइजर्स और वो पेस्टिसाइड आपके खेत में भी आएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, उस 10 एकड़ जमीन में से कोई 1.5 एकड़ जमीन ही सर्टिफाई हो पाती है, ताकि वो पूरा इलाके को सिक्योर करने में ये बाजू वाले खेत से भी वो केमिकल हमारे फार्म पे ना आ पाए। और गवर्नमेंट, मैं इस बात के लिए सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हर 6 महीने में इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो सॉइल टेस्टिंग्स करते हैं, वाटर टेस्टिंग्स करते हैं, ये सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर बहुत टफ है, पर साथ ही साथ बहुत अवेयरनेस आने से, क्योंकि आजकल कंज्यूमर इन चीजों को चाहता है, उस वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि अरे भाई वो एक एकड़ के पैच से जितना रेवेन्यू आता है उतना 5 एकड़ के पैच से नहीं आ रहा है। तो फिर लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे कि चलो हम इसको क्यों ना नेचुरली बनाएं, हमारा स्वास्थ्य भी। आज के दिन हमारे किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जो अपनी रसोई में खाना बनाते हैं उसके लिए उन्होंने एक अलग पीस ऑफ लैंड रखा हुआ है, वहां पे जो वो उगाते हैं वो खुद खाते हैं, और जो बेचना है वो अपने पूरे बड़े पीस ऑफ लैंड पे उगा रहे हैं। तो अब ये सब चीजें वो लोग भी समझ रहे हैं, उनको पता चल रहा है धीरे धीरे, और ये सब कुछ हो रहा है हम सब की अवेयरनेस की वजह से। बिल्कुल, हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं, हम लोगों को पता चल रहा है। आज से 5 साल पहले अगर हम बात करें तो जो प्राइस डिफरेंस होता था ऑर्गेनिक और नेचुरल नॉर्मल वेजिटेबल्स में, वो अब उतना बड़ा गैप नहीं रह गया। हाँ जी। पहले वो बहुत बड़ा गैप होता था लोगों को बताने में, और लोग कहते थे अरे अरे वो केला तो वैसा ही है, जबकि नॉर्मल केला 6 इंच का है और ऑर्गेनिक केला तो 4 इंच का ही है। वो छोटा भी है, देखने में खूबसूरत भी नहीं है, और महंगा भी है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो छोटा भी है, देखने में खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन महत्व है स्वाद का और पौष्टिकता का। बिल्कुल। और वो दोनों चीजें उससे प्राप्त हो रही है। हाँ, उसमें स्वाद ज्यादा है और वो पौष्टिक भी ज्यादा है, लेकिन बस वो देखने में खूबसूरत नहीं है। तो उस पर जरूरत हमें वो, क्योंकि जो हम जिसे हम कंज्यूम करने वाले हैं वो देखने में सुंदर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो पौष्टिक है या नहीं, वो स्वादिष्ट है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। तो चीजें जो है वो धीरे धीरे अब इजी हो रही हैं, फार्मर भी उस ओर जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ जी हमें इन ऑर्गेनिक चीजों को उगाना चाहिए। और इसमें एक चीज है कि हम लोग जीएमओ और ऑर्गेनिक में भी अंतर नहीं समझते। मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से जो चीजें बनती हैं, बड़े बड़े एप्पल्स होते हैं और बड़े बड़े मैंगोज होते हैं, और आज मतलब एक ये कम ही कहूंगा मैं, क्योंकि उस जीएमओ में क्या होता है, प्रोड्यूस ज्यादा होता है, मतलब साइकिल टाइम कम होता है फसल का। तो लोग ऑर्गेनिकली जीएमओ उगा रहे हैं, तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए कि मतलब ऑर्गेनिक और जीएमओ तो अलग अलग चीजें हैं, पर हमें ना नेचुरल चीजें ज्यादा, नेचुरल की तरफ ज्यादा जाना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं या उनसे जो प्रोड्यूस आ रहा है उसकी तरफ कम जाना है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, मैंगो बड़ा है, अंदर का सीड कम है, पल्प ज्यादा निकलेगा, वेस्ट भी ज्यादा है, क्योंकि वो हमने उसे लैब में क्रिएट किया है उस सीड। तो लोग आजकल, और उसपे ऑर्गेनिक का ठप्पा भी है क्योंकि वो ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया।
पर उसमें टेस्ट भी है, वो साइज भी सुंदर है, लेकिन उसमें मतलब उसमें जो उसका जो तत्व है वो उतना अच्छा नहीं। मतलब एक 100 ग्राम के मैंगो में जितनी पौष्टिकता होनी चाहिए उतनी पौष्टिकता वो 500 ग्राम के मैंगो में। तो वो स्टमक फिलिंग तो है पर उतना पौष्टिक नहीं है। हेल्थ वाइज भी इन चीजों पे हमें जरूर ध्यान दे। हाँ जी जी मैं कह रही हूँ हेल्थ वाइज भी शायद नुकसान देता होगा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। नहीं नहीं, हेल्थ वाइज तो वो उतना मतलब मेरे पास जानकारी नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता हो। ओके पर वो पर मैं ये जरूर श्योर हूँ इस बात के लिए कि वो उतना पौष्टिक नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट्स और वो कम रहते होंगे कंपेयर टू द नेचुरल। हाँ, जो हमारा नेचुरल प्रोड्यूस है और वो जो जीएमओ प्रोड्यूस है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज मैं 100% श्योर हूँ कि वो काफी कम हो। राइट ग्रेट। सो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के वैसे बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटी को भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बेनिफिट्स ना अवेयरनेस से मिलते हैं। आज के दिन अब जैसे कि हम फुट हिल्स की बात करें तो वहां पे जो फार्मर्स हैं उनको उसके बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्योंकि वो जो है वो मंडी से पास में है, जहाँ पे उन्हें अपना प्रोड्यूस बेचना है वो वहां से पास है। लेकिन जो इंटीरियर में है जो लोग ज्यादा, जैसे हमारे हिल्स की बात करें तो वहां पे रोड से भी काफी दूर होता है प्रोड्यूस, फिर म्यूल्स पे उसे लाद के नीचे सड़क तक लाना पड़ता है, तो उसमें ना जो कार्टेज होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां तक उतनी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों के पास। और वहां तो अभी सिर्फ अपने जीवन को सही तरह से चला पाए उसी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उन लोगों के पास वो सोच ही नहीं है कि माफी चाहूंगा कि उनके पास वो सोच ही नहीं है कि भाई हमें इस तरफ जाना है। अभी तो उनको यही नहीं पता है कि इस सीजन के बाद अगले सीजन में मौसम खराब हो गया तो भोजन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो समस्याएं इस बड़े लेवल पे है कि अब रूट लेवल तक गवर्नमेंट जा रही है, कोशिश बहुत कर रही है, पर अभी शायद थोड़ा समय लगेगा, पर हम लोग राइट ट्रैक पे हैं। एक्चुअली हमने चलना तो शुरू किया है कम से कम। हाँ जी बिल्कुल। हम जितना दूर हो थे कम से कम हमने उस तरफ देखना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बात है। राइट, वेरी गुड। सो अगर किसी ने छोटा एक ऑर्गेनिक गार्डन खुद स्टार्ट करना है, उनको कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? जैसे आजकल हम लोग अपना किचन गार्डन भी अपने लॉन में करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई स्मॉल टिप्स वगैरह रहेंगे? बेसिक से शुरू करना है जी। आज के दिन तो परिस्थिति ये हो गई है कि लोग अपनी घास को भी अच्छा उगाने के लिए यूरिया डालते हैं। गार्डन तो मतलब ऐसे मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ कि अरे घास में वो लश ग्रीन गार्डन हमारे फार्म का दिखना चाहिए तो उसमें यूरिया डाल रहे हैं। तो वो मतलब हमें ये समझना है कि हमें ऑर्गेनिक करने के लिए कम करना है, ज्यादा नहीं करना। मतलब बेसिक करना है, खाली सीड का यूज करना है, उसे मतलब नॉर्मल काउ डंग खाद देनी है और नॉर्मल पानी देना नहीं करना है। समस्या जहाँ आती है जहाँ हम ज्यादा करने लगते हैं। तो बेसिक्स के साथ काम करेंगे तो वो हमारी चीजें अच्छी भी होंगी और हम अपने छोटे छोटे गार्डन में भी बहुत सारी चीजों को ग्रो कर सकते हैं। आजकल जैसे अब सीजन है तो हमारे किचन गार्डन में टमेटोज बहुत इजीली हो जाते हैं, ग्रीन चिलीज बहुत इजीली हो जाती हैं और बीटरूट बहुत इजीली हो जाता है। इन चीजों को हम बेल पेपर्स बहुत इजीली हो रही हैं। तो बेसिक है ये चीजें बहुत छोटे से जगह में। और सिर्फ हमें कोशिश ये करनी है कि जैसे कि हमें वो शॉपकीपर्स बोलते हैं कि हाँ ये वाला 2 ड्रॉप सॉइल में डाल दीजिएगा तो उससे मैग्नीशियम बढ़ जाएगा। तो हमें मैग्नीशियम बढ़ाना है ना तो हमें बनाना पील डाल देना है। ओके। और अगर कोई लोग घर में एग यूज करते हैं तो एग के जो छिलका होता है उससे कैल्शियम अपने आप बढ़ जाता है जमीन में, वो यूज करना है। तो और ये सारी जानकारी बहुत इजी है। हाँ
बहुत मतलब इजी है, मतलब अब सबके घर में बनाना तो यूज होता ही है, तो वो बिल्कुल। बनाना पील जो है वो डस्टबिन में नहीं फेंकना है और वहां डाल देना है। और सो ये बहुत, और इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है क्योंकि हम शहर में हैं। हाँ जी। हम ये जो छोटे छोटे गार्डन्स बनाने की बात कर रहे हैं, ये सिटीज में बनाने की बात कर रहे हैं। तो बस वो शॉपकीपर को क्या है, उसे तो लगता है कि वो 60 रुपए की बॉटल पे जो 20 रुपए मुझे मिलने वाले हैं वो उसके लिए जरूरी है। और हमारे लिए जरूरी है कि वो 2 ड्रॉप जो हम सॉइल में डाल रहे हैं वो हमारे घर में घूमने वाले पेट्स के लिए भी बहुत बुरा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, तो क्योंकि आज के दिन हम उन्हें जानवर नहीं मानते हैं, वो हमारे घर का सदस्य फैमिली, है। दे आर आल्सो पार्ट तो ऑफ फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो हमें इस ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हम ला सकते हैं कि एटलीस्ट इसलिए हमें वो यूज नहीं करना है कि हमारे घर पे अगर किसी के पास घर में गार्डन है, दैट मींस बड़ा घर है, बड़ा घर है तो नॉर्मली लोग एक तो पेट रखते ही हैं। तो आज वो खाली वो दिखने वाली खूबसूरती की वजह से उसके लिए भी, उसकी भी आंखों पे बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। उसके मतलब आजकल जैसे हम गार्डन में एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक मेडिसिन आती है मेलाथियन, उसको अगर हम ग्रास पे यूज करते हैं तो उससे घास पे मच्छर नहीं होते। पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसको 1 फुट दूर से आप सूंघ नहीं सकते, इतनी खराब बदबू आती है। हाँ, तो और वो आजकल हमारे नॉर्मल गार्डन्स में और होटल्स में खासकर, क्योंकि वहाँ पे गार्डन में टेबल्स लगे होते हैं लोगों के बैठने के लिए, और गर्मियों में बरसात में बहुत मच्छर हो जाते हैं, तो वो उसका नॉर्मली यूज किया जाता है। पर वो एक मतलब मैं माफी चाहूंगा ये बताऊंगा मैं आपको कि उसके लेबल पे लिखा होता है कि नॉट गुड फॉर रैट्स। तो आप सोचिए कि हम क्या चीज यूज करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देवेंद्र जी, आप हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल, वी शुड टेक केयर। सो आपके जो मेडिटेशन प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं। हाउ इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अपनी रूट से, हमारी वेद और शास्त्रों से ये चीजें निकली हुई हैं। तो और जबकि वेस्ट में इसका इतना प्रयोग हो रहा है आजकल, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, तो आप इससे कैसे जुड़े और इस बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ जी, देखिए आई थिंक 2010 से मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली मेडिटेशन वगैरह में हूँ, और वो मेरी बड़ी सिस्टर की वजह से है कि वो मुझे इस बात में उन्होंने मुझे रिकनेक्ट किया, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस वृंदावन है। अच्छा। मैं गोवर्धन से बिलोंग करता हूँ। तो हम बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से आते हैं, और धार्मिकता से तो हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, पूजा पाठ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड ही है हम लोग। पर मेडिटेशन से मेरी सिस्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया 2010-11 में। okay. और बड़ी एक छोटी सी कहानी है कि एक ठग से मिली वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे भी मिलवाया। तो हम दोनों ने मेरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था कि मुझे लगता था कि भाई ये तो बेवकूफ बनाने वाला आदमी है, और बस उसके साथ मेरी सिस्टर के साथ इस पॉइंट से मैं जाने लगा कि हाँ भाई चलो मैं जा रहा हूँ तो सेफ तो होगा। पर थोड़े समय पे हमें समझ में आया ये ठग है, लेकिन उस ठग से हमें ये बड़ा अच्छाई मिली कि हमने ना ये एक शेर के मुंह खून लगा। अच्छा। उसे ये समझ में आ गया कि हमें ये समझ में आया कि भाई ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और फिर हमने धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट किया और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करा। और फिर मैं मेडिटेशन के बारे में एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन में जो भी लोग जाना चाहते हैं या जो ध्यान करना चाहते हैं, उनको, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता किसी भी बात से, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ये समझना चाहिए कि मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान। हाँ जी। और ध्यान का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्ड मीनिंग अगर डिक्शनरी के हिसाब से हम देखेंगे तो उसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, एक है ध्येय और दूसरा है यान।
और देह शब्द का अर्थ होता है हमारा शरीर। देह कहते हैं ना, इसकी देह, ये शरीर को कहते हैं देह, देह। और यान का मतलब होता है आवागमन का साधन, एक स्थान से दूसरे, जैसे वायुयान हो गया या अग्नियान हो गया, तो जैसे एक स्थान से दूसरी स्थान पे जाने का साधन होता है यान। तो ध्यान का अर्थ होता है कि हमारे शरीर रूपी ध्यान को जो सुचारू रूप से चलाए रखने में जो पद्धति सक्षम है वो ध्यान है। तो ध्यान को समझना बहुत जरूरी है। आजकल ना हम लोग फॉलोअर हो गए। और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से देहरादून जाना है, या सॉरी हम नैनीताल को मानते हैं क्योंकि वहां पे हिल का रास्ता थोड़ा सा है। तो अगर हमें यहाँ से नैनीताल जाना है तो एक व्यक्ति होगा जिसे गाड़ी में जाने में बहुत मजा आएगा कि भाई हमें रास्ते के नजारे मिल रहे हैं और हम चारों तरफ से एटमॉस्फेयर को देख पा रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और कहीं दूसरी तरफ किसी को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होगी तो वो तो प्यूकिश फील करेगा, उसको वॉमिटिंग होगी। तो वो रास्ता तो एक ही है, एक को बहुत मजा आएगा और एक को बहुत प्रॉब्लम होगी, उसको लगेगा कि क्या मुसीबत में फंस गए। तो हर रास्ते का, हर व्यक्ति का अपना अनुभव है। तो हम ना मेडिटेशन के सेट पैटर्न्स पे जाने लगे कि भाई फला आदमी ने हमें ऐसे बताया है, हमें तो पद्मासन में बैठना पड़ेगा, हमें तो शीर्षासन करना पड़ेगा, हमें तो आंख बंद करके ही ध्यान लगाना पड़ेगा। पर सबसे पहले है कि अगर हमारा मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा किस चीज में इंटरेस्ट। किसी के लिए हो सकता है कि पद्मासन पे बैठ के आंखें बंद करके साइलेंस में ध्यान लगाना मेडिटेशन है, पर हो सकता है किसी के लिए चलती मोटरसाइकिल पे कोई एक्सपीरियंस आ रहा है। तो सबसे हमें ये समझना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है सबसे पहले, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वो रास्ता किसी का है, उसने उस रास्ते से वो आनंद प्राप्त किया, पर उसी रास्ते पे वो आनंद हमें प्राप्त होगा या नहीं, हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास आज के दिन 1000 पद्धतियां, 1000 रास्ते उपलब्ध हैं, पर हो सकता है कि उसमें से कोई एक हमें आनंद दे, बहुत अच्छी बात है। और या फिर हमारा कोई नया ही रास्ता निकल के आए, पर होगा कब? जब हम ध्यान दें, जब हम समझें। तो ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, पर सबसे पहले ये समझिए कि आपको किस तरह के ध्यान में आनंद आ रहा है। क्योंकि ध्यान का अगर एक और अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ है सरलता। और आप सरल कब होंगे, आपको मतलब आप इजी कब होंगे जब आपके पास कोई डिफिकल्टी नहीं हो, है ना। तो वो डिफिकल्टी कब नहीं होगी? जब आप अपनी तरह से अपने काम को करें। राइट। आज जैसे कल मैंने आपसे कहा कि आज 11:30 बजे का रखें, आप कहती नहीं जी हम सुबह 6 बजे का रखिए। अब मैं सोचता भाई सुबह 6 बजे का प्रोग्राम करना है और 4 बजे उठना पड़ेगा, तो क्या वो इजी हो पाता? मैं कोई सवाल ही नहीं है। पर आपने कहा 11:30 का, मैंने कहा 11:30, आपने भी कहा, तो हम दोनों एक पाथ पे आ गए। बिल्कुल। और फिर हमने इस कार्यक्रम को सरलता से, सुचारू रूप से कर लिया। पर अगर उसी में हम दोनों में से किसी एक की अरुचि होती तो वो आनंद नहीं आता, और फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत चीजों में समस्या है आपकी। तो ना हमें सबसे पहले एक पाथ पे आने की जरूरत है, थोड़ा सा सरल होने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि हमें करना क्या है, हमें किस तरह से वो आनंद मिलेगा। तो ध्यान को समझना है, उसके बाद ध्यान करना है। बिल्कुल। सो अपने ये जो मेडिटेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, और इस तरह का माहौल, एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड सम ब्रीफ अबाउट योर मेडिटेशन प्रोग्राम्स। जी, तो मेडिटेटिव सोल एंड बियॉन्ड में ना हम एक पंच तत्व मेडिटेशन करते हैं, जिसमें 500 तत्वों के साथ एक मेडिटेशन। तो जैसे फ्लोइंग रिवर में, प्रॉपर रिवर में हम बेड्स लगाते हैं
उस पे वाटर मेडिटेशन होती है, और बड़े बड़े स्विंग्स लगाते हैं हम फॉरेस्ट में, तो उसमें फिर विंड मेडिटेशन होती है। और फिर हम रात को स्काई मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल उसे हम तारों की छाया में बोलते हैं। उस ऐसे ही अर्थ मेडिटेशन होती है। और हम फायर वॉक करते हैं, लोगों को 1200 डिग्री जलते गर्म कोयले पे नंगे पैर चलना सिखाते हैं। तो उससे हर्ट होता नीचे हर्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। और बहुत इजी है और 100% वैज्ञानिक। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल पार्ट भी है, पर है वो 100% साइंटिफिक। कि जैसे कि जैसे कि हम एक मोमबत्ती जलाते हैं और उसकी लौ के ऊपर अगर उंगली को ऐसे बार बार हिलाते रहते हैं तो कुछ नहीं, हमने भी सब नहीं करा हुआ पर उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो जल जाएंगे। यस। तो इसको हम फेस योर फियर्स कहते हैं। तो वही हम लोगों को चलना सिखाते हैं। तो इसमें 5 तरह की मेडिटेशंस होती हैं और 5 तत्वों के साथ हम जुड़ना सिखाते हैं। और मैं उसमें भी लोगों से यही कहता हूँ कि ये मेडिटेशंस आपको आपके अंदर क्या आनंद भरा हुआ है उसको ना महसूस कराने के लिए। इसके लिए दोबारा मेरे पास या दोबारा हमारी संस्था के पास आपको आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमसे कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एटमॉस्फेयर हमने ना प्राकृतिक एटमॉस्फेयर को साइंटिफिक तरीके से क्रिएट किया है ताकि आपके दिमाग को हम सरल करें और आपको समझा पाए कि वो जो मस्तिष्क जब सरल होता है तो कितना आनंदमयी होता है। तो ये सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। ये नदी में बेड लगाने के पीछे जो नदी की सूदिंग साउंड होती है, नीचे पानी बह रहा होता है, आप थोड़ा सा पानी में चल के जाते हैं, फिर बेड के ऊपर बैठते हैं, तो ये सब कुछ साइंटिफिक है। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आपको दिल्ली में अपने घर पे भी ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि वो हमने साइंटिफिकली क्रिएट किया। पर और ये क्रिएशन हम बोलिए। मैं कह रही हूँ जो नेचुरल सराउंडिंग्स में आएगा, जो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, वो हम दिल्ली में कहाँ महसूस कर सकते हैं? दैट इज हार्डली पॉसिबल। पर समझने वाला एक बात ये है कि जब हमारा दिमाग शांत होता है, सरल होता है, तो हमें कितनी स्फूर्ति होती है, कितना आनंद होता है, क्या अद्भुत एहसास होता है, हम कितने इजी हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। तो बस वो समझने के लिए वो एक्सपीरियंस देना है हमें। पर आपको आपके दैनिक दिनचर्या में वो आनंद कैसे आ सकता है, वो आपको ही ढूंढना है, दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता। यस यस। सो कुछ एडवाइस करें कोई लाइक समबडी हु जस्ट वांट्स टू स्टार्ट, किसी ने बिगिन करना है मेडिटेशन टेक्निक्स पे, तो उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी किस सात्विक प्रवृत्ति से हमें अच्छा लगे। क्योंकि अगर आज मैं सीधा ये बोलूं कि आप ना ऐसी चीजें शुरू करो जिसमें आपको मजा आता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्मोक करके बहुत मजा उन्हें आता है, बहुत ऐसा वो समझते हैं। मैं इस बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि ऐसा उनको लगता है कि उस समय पे उन्हें बड़ा मजा आ रहा है, पर एंड ऑफ द डे उससे कोई ना कोई हानि हो रही है। या फिर आपको उस चीज में मजा कब आता है? जब आप टेंशन में होते हैं। और साइंटिफिकली जो निकोटीन है वो एंजाइटी को बढ़ाता है, लेकिन हम लोगों ने वो एक माइंडसेट बना लिया है कि जब हम सिगरेट का पफ अंदर ले रहे हैं तो हमें रिलैक्सेशन आ रहा है, पर हम समझ नहीं रहे हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो वही सांस अंदर बाहर करते हैं और वही मजा हमें तब भी आ सकता है अगर हम उसको समझें। वो सिगरेट के धुएं से वो मजा नहीं आ रहा है। पर जैसा आपने बड़े बुजुर्गों से कभी सुना होगा पीछे कि जैसे आप बहुत टेंशन में हो, कुछ जल्दी कर रहे हो, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दादी नानी है, दादी है, वो कहते थे बेटा जरा 2 मिनट बैठ जा तो लंबी सांस। तो वो जो 2 लंबी सांस लेने से जो हमें सरलता आ जाती थी, हमारे को एक बेहतर विजन मिल जाता। पर हम ये नहीं समझ रहे हैं कि
वो सिगरेट पीने से जो हम लंबी सांस के साथ धुआं भी ले रहे हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, पर आनंद वो निकोटीन से नहीं आ रहा है, आनंद वो हृदय की गहराई। वेरी वेल देवेंद्र जी, अब हम बात करते हैं जो आपके ये हैंड क्राफ्टेड फ्रूट प्रिजर्व्स एंड कॉन्डिमेंट्स हैं, ये यहाँ के लिए मतलब कैसे इंस्पिरेशन मिली और हाउ डिड योर फैमिली स्टार्टेड मेकिंग दीज फूड प्रिजर्व्स एंड कॉन्डिमेंट्स बाय हैंड, इसके बारे में कुछ बताइए। जी जी, तो ये फ्रूट चटनीज बनानी शुरू हुई थी कि जब ऐसा कहेंगे कि राजा महाराजा एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो उस समय पे ना फ्रूट्स का कल्चर बहुत था। पर होता क्या था, फ्रूट्स की एक शेल्फ लाइफ होती है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो जल्दी खराब हो जाता है। तो उस समय पे फलों की चटनियों का आविष्कार हुआ। तो जैसे कि आम की चटनी बनने लगी, ऐसे ही अचार भी बनते थे। कि वो क्या है, 1 महीना 2 महीना आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो खराब नहीं होते थे। तो वहां से फ्रूट चटनी बननी शुरू हुई। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने इसे क्यों शुरू किया दोबारा से और हम इस ट्रेड में आए कि काफी साल पहले मैं यूरोप में पोर्चुगल में था। ओके। तो पोर्चुगल में लिस्बन के पास एक जगह है फुनचेरा, जहाँ पर सिर्फ जैम्स वगैरह ही बनाए जाते। तो वहाँ पे मैं किसी से मिलने गया था और वहाँ पे देखा तो जिस परिवार में मैं रहने वाला था 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, वहाँ पे एक 30-40 किलो का जैम का बैच को फेंक रहे थे क्योंकि वो जल गया। उसमें थोड़ी सी जलान आ गई थी, इसलिए वो उसे फेंक रहे थे कि अभी किसी काम का नहीं। क्योंकि बीइंग वेजिटेरियन मैं क्या है कि अपने कुछ स्पाइसेस वगैरह हमेशा जब विदेश जाता हूँ तो इंडिया से साथ कैरी करता हूँ कि किसी भी अवस्था में राइस तो हर जगह मिल ही जाता है और थोड़े से मसाले हमारे पास हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी खाने की समस्या नहीं होगी। बिल्कुल। तो मेरे पास मेरे कुछ स्पाइसेस थे, जैसे कि सिनेमन था और दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो ये फ्रेग्रेंस खुशबू वाले मसाले होते हैं। तो मैंने उस बैच में थोड़े से मसाले डाले और वो तो जलने की जो बदबू थी वो उसमें से चली गई और वो जैम चटनी की तरह बन गई। ओह वाओ। ओके। और वो उन्हें बहुत टेस्टी लगा। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और ये बात वहीं समाप्त हो गई और मैं वापस आ गया। ठीक है। फिर मैंने आके घर पे ये डिस्कस किया और फिर हमने इस बारे में थोड़ा सोचा और फिर मुक्तेश्वर के हिल्स पे धीरे धीरे वहाँ पे मैं था और एक लॉन्ग हॉलिडे के लिए मैं वहाँ था। और वो लंबी कहानी है, एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ। हमने वो चटनी वहाँ बनाई, वो बाय गॉड ग्रेस बहुत टेस्टी बनी, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू करा। पहले बैच में सिर्फ 20 बॉटल बनाई, हाँ, और आज बाय गॉड ग्रेस मतलब हजारों बॉटल्स बनती है। तो वो इसके साथ धीरे धीरे वो चीजें जुड़ती गई और आगे बढ़ती गई। बिल्कुल। तो इसका जो मतलब ये जो से फ्लेवर और रेसिपीज आती हैं, इनका क्रिएटिव प्रोसेस कैसे, मतलब डेवलप कैसे होते हैं ये फ्लेवर्स एंड रेसिपीज? मैं तो कहूंगा जी बाय गॉड ग्रेस होते हैं। अच्छा। हाँ जी। हमने तो मतलब बाय गॉड ग्रेस होते हैं और आजकल की टेक्निकल भाषा में कहें तो बाय चांस हमने तो आज 15 साल में हमारे पास सिर्फ 18 फ्लेवर ही है क्लास में। ओके। हाँ, तो हमने तो वो एक आम की चटनी के साथ वही रेसिपी ट्राई की तो मैंगो चटनी बन गई। फिर कीवी के साथ वही चटनी रेसिपी ट्राई की तो कीवी चटनी बन गई। फिर प्लम के साथ वही रेसिपी ट्राई की तो प्लम चटनी बन गई। तो और साइमल्टेनियसली जब हम ऐसी नेचुरल चीजें बनाने लगे तो एक बार विदेश से पेरिस से एक शेफ आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये आप बहुत एक एग्जीबिशन में मेरी मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीज है जी, और
हम ना इस तरह की नेचुरल एनर्जी बार बनाना चाहते हैं। ओके। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी। उन्होंने बताया कि ये इंग्रेडिएंट से ना ये न्यूट्रिशन वैल्यूज आएंगी जो हमें मैच करें। अब इसमें फ्लेवर आता है। तो हमने साथ में काम किया और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब हम उनकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे थे तो उस एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा था कि वर्ल्ड वाइड मैं भी ये रेसिपी यूज नहीं कर सकती, पर क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे उन्होंने हमें ये परमिशन दी। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे कंपनी को बोलो कि अब वो देखेंगे तो पता नहीं उनको क्या कहेंगे उनकी कंपनी वाले, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने बोला मुझे कि आप ये एग्रीमेंट चेंज करो, जैसे कि आप उनको बोलो कि उनकी कंट्री में आप ये प्रोडक्ट नहीं बेचोगे बना के और आपकी कंट्री में वो ये प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे बना के, और वर्ल्ड वाइड दोनों इसको यूज कर सकते हैं। और उन्होंने ये हमें सुझाया, नहीं तो मेरे पास इतनी अकल नहीं थी कि मैं उनको बोलूं ये बात कि ऐसा करिए, पर उन्होंने मुझे ये समझाया और हमने ऐसा किया। तो अब हम 3 तरह की ग्रेनोला बार्स भी बनाते हैं जो कि 100% नेचुरल है। ऐसे ही फिर एक दोस्त के घर पे थे, उनके बच्चों को कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई थी। तो और उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा उसके लिए कि मेरा बड़ा प्यार है उस बच्चे के साथ, तो मैंने कहा यार क्यों ना मखाने में कैल्शियम बहुत होता है तो उसे चॉकलेट में रैप कर देते हैं। तो हम चॉकलेट कोटेड मखाने बनाने लगे। तो ये सारी कहानियां हैं, ये इंसिडेंट्स हैं छोटे छोटे। तो अब हम मखाने के फ्लेवर्स भी बनाते हैं, अब हम ग्रेनोला बार्स भी बनाते हैं। तो मैं तो इसे मानता हूँ ये सब कुछ ये बाय गॉड ग्रेस हुआ है। इसमें मैंने कोई ना मेहनत की है ना कोई रिसर्च की है, वो हिट एंड ट्रायल से एक बार थोड़ा सा चॉकलेट डाला, फिर उसमें जब हम इसे प्रोफेशनली बनाने लगे तो उन्होंने कहा थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ना चाहिए, तो उसमें हमने चिया सीड कोटेड कर दिए, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यूज भी आ गई और क्रंचीनेस भी बढ़ गई। तो वो ऐसे चीजें वो मतलब लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। वेरी नाइस। सो ये जो आपके हैंड क्राफ्टेड प्रिजर्व्स एंड कॉन्डिमेंट्स हैं, ये जो हम लोग स्टोर से खरीदते हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क रहता है? व्हाट इज द डिफरेंस? एंड ये उनसे बेटर आई एम श्योर। देखिए हाँ, अभी तक हम लोग मैं ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा है। हम लोग मेजरली व्हाइट लेबल काम करते हैं, मतलब हम दूसरे ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए ये सामान बनाते हैं। हाँ, लेकिन और अगले 2 महीने में हम लोग भी आपको स्टोर्स पे मिलने लगे, हम भी अमेज़न पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे और उन प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हम लोग 100% नेचुरल, मतलब हम चीनी भी यूज नहीं करते, हम देसी खांड यूज करते हैं एज अ स्वीटनर। जो शुगर मिल से शुगर मिलती है हम वो भी यूज नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स में, हम देसी खांड यूज करते हैं, हम गुड़ यूज करते हैं, हम शहद यूज करते हैं। हमारा 92% वी आर द ओनली प्रोडक्ट इन कंट्री जो 92% सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट। हाँ, और जो क्लोजेस्ट कंपटीशन इन इंडिया है वो 57% है। सोचिए 57 से 92 के बीच में कुछ है ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिसमें 0.5% फ्रूट है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आजकल ये जेली फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी। और तो हमें ये समझना चाहिए, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो जेली जो है वो पैक्टिन से आता है। हाँ, और जो पैक्टिन होता है, जो नेचुरल पैक्टिन होता है, वो लेमन सीड से मिलता है, एप्पल सीड से मिलता है, वो हम लोग उससे जेली बना सकते हैं। पर 99% प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल पैक्टिन यूज होता है जो कि बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो उसे हम कम से कम इस्तेमाल करें। और आप देखेंगे, और एक थोड़ी सी जानकारी वाली बात है कि आप जब लेबल पे पढ़ते हैं तो 99% प्रोडक्ट्स पे आप लेबल पे लिखा होता है क्लास 2 प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है।
लिखा होता है जी। हाँ, उसको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उस पे लिखा होता है यूज्ड क्लास 2, और उसका जो टेक्निकल नाम है मुझे याद नहीं है, माफी चाहूंगा मैं, पर वो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव मुझे याद है। वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज किया है, पर वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। वो कितनी खराब है वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तो नहीं तो मेरे ऊपर समस्या आ जाए, इसलिए मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, पर वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो हमें ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं। आप आज से 20 साल पहले आप ज्यादा उससे रिलेट कर पाएंगी कि अगर आप कोई चॉकलेट खरीदते थे और उसे पॉकेट में रखते थे तो वो मेल्ट हो जाती। बिल्कुल हो जाते थे जी। हाँ, पर आज ऐसा नहीं है। आज उसे आप सनलाइट में गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी लेके आओगे तो वो मेल्ट तो जरूर होगी, पर वो अपनी शेप नहीं छोड़ेगी। वो जिस शेप की थी उसी शेप में रहेगी। उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, पर हो रहे। पर अब कौन सी चीज कहाँ से आ रही है उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हमें खुद के लिए एक संस्कृत का एक टर्म होता है स्वांता सुखाय। ऐसा कहा जाता है कि हमें जीवन में जो करना है खुद के आनंद के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो आप सामने वाले को भी सुख तभी दे सकते हो जब आप अंदर से सुखी हो। आप सामने वाले को खुशी तभी दे सकते हो जब आप अंदर से खुश हो। तो ये जरूर हमें समझना चाहिए कि हम उसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए। हाँ जी। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे घर की रसोई में नहीं बन सकता है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं एक ब्राह्मण परिवार से, तो मेरी रसोई में प्याज लहसुन भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो लेकिन हम सब चीजें बनाते हैं और वो स्वादिष्ट बनती हैं, पर थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पर उसके पीछे हमें कितना बड़ा लाभ है कि स्वस्थ शरीर। जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है निरोगी काया। तो अगर वो मिल जाती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन पैरों में दम ही नहीं होगा तो उनको चढ़ के देखेंगे कैसे? और कितने बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, अगर लिवर ही खराब होगा तो वो टेस्ट कैसे लेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, थोड़ा सा चीजों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और ये ध्यान देते हैं हमें क्या, और चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। अरे माँ कितने प्रेम से बना रही है तो उसके लिए ध्यान दो थोड़ा सा। उसको भी आज हम कितने बड़े हो गए, उन्हीं चीजों से तो हो गए। तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसका जो अर्थ है उसके पीछे उसको समझते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा आनंद होगा जी। और बच्चों के लिए खासकर मैं कहूंगा कि हमें बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए, उनके प्रति माताओं को बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए, और उन्हें क्या खिलाना है क्या पिलाना है उसके पीछे समझना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि घर में चीजों को तैयार करें। वेरी ट्रू। कहना बहुत सरल है, करना बहुत मुश्किल है। पर आप समझिए कि वो जब तक नहीं करते तब तक ही मुश्किल। आप ये समझिए कि ये मेरी पहला साक्षात्कार है जूम पे किसी के साथ। अच्छा। तो सुबह 10 बजे मैं ये सोच रहा था कि यार अपनी सिस्टर को बोलूं कि आप जरा मेरे लिए सेटअप कर दो, या किसी ऑफिस से किसी को बुला लूं। कि अरे भाई ऐसा ही होता है हमेशा कि या तो ऑफिस से किसी को बुला लिया या कोई आ जाए वो कर दे, क्योंकि घर में आज पूजा थी तो बहुत सारा, आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। बहुत अच्छा उसकी तो बहुत तैयारियां थी, तो मैंने कहा आज चलो मैं ही करूंगा सब। तो जब तक मैंने ये शुरू नहीं किया था मुझे वो पोर्ट भी नहीं मिल रहा था जिसमें ये हेडफोन लगाने। वो 2 बार बड़ी समस्या से वो हो गया, लेकिन जब हमने किया तो हो ही गया। Exactly. कहने का तात्पर्य यही है कि कोशिश की तो हो ही गया। आज तक मैं सोचता था अरे ये सिस्टम बड़ा, मुझे कंप्यूटर चलाना ज्यादा नहीं आता है जी, मैं जरा गैजेट्स के साथ, आपसे भी मैंने फोन पे कहा था आपको, आप पूरी नेचर और रूट से जुड़े हुए हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सीखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बिल्कुल, तो आपको याद होगा मैंने आपसे भी कहा था कि हम ना आमने सामने बैठ के कर लेते हैं सेंटर। तो उसके पीछे कारण ये था
ये भाई मुझे तो आता ही नहीं है। अंदर से सोच ये थी, मैं आपको सच अब आज बताऊंगा। आपने बहुत बढ़िया तो सारा कुछ करा ही है और सारी चीजें हो गई हैं पॉसिबल। हाँ, राइट। हो ही गई है। अच्छा, चलते चलते ये बताइए, जो ये आपके प्रिजर्व्स और कॉन्डिमेंट्स हैं, क्या इनको हम कुकिंग और बेकिंग में कुछ इंटरेस्टिंग डिशेस भी बन सकती हैं इनसे? क्योंकि हाँ हाँ बच्चों हाँ की भी जी, बात हाँ हो जी, रही है। हाँ जी। बिल्कुल। कैसे, मतलब हाँ, ऐसा होता है इंटरेस्टिंग कि डिशेस का कुछ? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे होटल्स हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं कि अच्छा। जैसे कि केटरिंग में वो लोग कीवी कोफ्तास बनाते हैं, जैसे मलाई कोफ्ता आपने सुना हाँ होगा हाँ हाँ और नवरत्न कोफ्ता सुना होगा, हाँ। ऐसे ही वो लोग कीवी कोफ्ता बनाते हैं। तो उस अच्छा। कोफ्ते की जो फिलिंग है वो हमारी कीवी चटनी है। ओके, वाह। हाँ, और नहीं। हाँ, ऐसे ही आपने एप्पल सिनेमन पाई सुना होगा, हाँ बहुत सारे बेकरीज में मिलता हाँ है। जी। ऐसी कई इंडिया के रिनोन्ड बेकरीज हैं जो वो एप्पल सिनेमन पाई हमारी एप्पल सिनेमन चटनी से फ्लेवर करते हैं। सो टेस्टी और हाँ, इंटरेस्टिंग ऐसे ही डिशेस हम बन सकती हैं। हाँ, और साइमल्टेनियसली हमारा एक प्रोडक्ट है नट एंड सीड मिक्स कहते हैं, वो मिल्क मिक्स है, प्रोटीन मिल्क मिक्स है। तो उसके साथ लोग कुकीज बना लेते हैं। हाँ, रागी कुकीज बन जाती है। और रागी आजकल बहुत इन है, लोग बोलते हैं उसे, हिंदी में पहाड़ी में मड़ुआ कहा जाता है। मड़ुए का फूल से जो आटा बनता है वो उसको रागी कहते हैं। तो बहुत पुराना है। हाँ जी। और 90% लोग जो है वो मड़ुआ नहीं जानते हैं, रागी सब जानते हैं। रागी जनरली पता होता पर है। हाँ हाँ, पर पहाड़ी में पहाड़ी भाषा और पहाड़ों में ही होता है, प्लेन्स में नहीं होता है, तो इसे मड़ुआ कहा जाता है। तो इस तरह से चीजें हैं, लोग उसको मतलब कुकीज भी बना रहे हैं, कोफ्ताज भी बना रहे हैं, एप्पल सिनेमन पाई भी बना रहे हैं। तो इन चीजों को ऐसे घर में भी यूज किया जाता है। इसी मिल्क मिक्स को आइसक्रीम में लोग यूज कर लेते हैं, मैं खुद बना के खाता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जिन्हें और पराठे पे रोल करके भी बहुत टेस्टी लगती है हमारी चटनी। वेरी नाइस। जी जी, इस तरह से जी। बिल्कुल, बहुत बहुत मज़ा आया देवेंद्र जी आपके साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस। आपने अपने इतने अच्छी जो इंस्पायरिंग जर्नी हमसे शेयर की है, फिर आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेडिटेशन, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पर्वतीय प्रिजर्व्स के बारे में जो जाना समझा, सब कुछ बहुत ही रिमार्केबल है। And you have not only taken initiative to lead a sustainable lifestyle, but have also set an example for others to follow, I must say. Your passion and expertise in these fields is truly commendable, and have left us all inspired with a lot to ponder upon, to think upon. I'm so grateful once again for the valuable time and effort you have taken to share your knowledge and expertise with us. Thanking you so much and in your incredible journey with us. And I wish you all the very best. Thank you. Thank you. Same to you. Same to you. Thank you.